Yeah. Please sign. अब इधर देखो सर इधर सर रेडी सर यहाँ डाउन डाउन अब एक बार इधर देखिए सर डाउन ब्रो आप इधर थोड़ा इधर सर एक మెడిసిన్ తింటే తర్వాత కిడ్నీ మీద ప్రాబ్లం సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది. We have also applied patent and we are working with various. So these are the taste with. I use It is good, sir. Little. This is foxtail method, core and powder, and it is a products of our ma'am Prashanti ma'am, IAS. I'm Fanishri Konte, founder and president of the organizing committee of Swasthya Ayush and Wellness Expo. I'm also the founder of Jeevashri Ayurvedic Wellness, and I take this opportunity to welcome our Honorable Health Minister Sri Mahmood Ali Garu, and our Jagdishwar sir, retired IAS, and Chinnanuddi sir, and Prashanti ma'am, Ayush Commissioner, and all the principals of the Ayush colleges who attended and who graced this occasion. Now this event is organized with a vision to bring all the wellness products, practitioners and wellness seeking public on a common platform, to provide a mega platform for the Ayush and wellness industry so that a larger diversified user clientele base gets exposure to the different available wellness products, practices and practitioners. And it is also to create an opportunity for different stakeholders of wellness for knowing each other. And also to create awareness in public about various available healthcare and healing modalities. In this journey of organizing the program, our like-minded team realized that there is a lacuna or gap between the general public and their understanding about Ayush care systems. And also there is a lack of awareness that there is a lot of scientific backing happening in these fields. I really hope that this baby step of ours may bring about little change and bring about positive response in the society. The whole world looks at India because of its diverse healing modalities, which proved its success during the recent pandemic. Now the age-old knowledge is validated by current science so that you can find answers to all the questions. The whole Swasthya event represents our journey from being well to well-being, personal health to planet health. So I thank for this opportunity to welcome sir, and I also thank all the dignitaries who graced this dais and off the dais. Thank you. ఈరోజు ఈ ఎగ్జిబిషన్తో వచ్చే తర్వాత నాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్, నా పేరెంట్స్ అభివృద్ధి కోసం, యునానీ కోసం చాలా ఆ టైంలో డిస్కస్ చేశారు. ఈ టైంలో ఎలోపతికి ఎక్కువైంది, యునానీ అండ్ ఆయుర్వేదిక్ తక్కువైంది. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రాపర్లీ రెస్పెక్టెడ్ ఆయుష్ కమిషనర్ శ్రీమతి ప్రశాంతి మేడం గారికి, 9th డైరెక్టర్ శ్రీ చిన్నం రెడ్డి గారికి, సుయిస్తా ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి
పహాని శ్రీ గారికి, సెక్రటరీ డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారికి, రిటైర్డ్ మా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, చాలా మంచి ఆఫీసర్, చాలా బాగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా వర్క్ చేసిన శ్రీ జగదీష్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరికీ, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాం. డెఫినెట్లీ ఇంతకుముందు చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్లో ఆయుర్వేదిక్ అండ్ యునాని ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా పెరిగింది. ఎలోపతిక్ మెడిసిన్ వచ్చిన తర్వాత డే బై డే అందరూ हैबिचुअल है ना एलोपैथिक मेडिसिन కోసం. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट अगर आपका ट्रीटमेंट चाहिए तो सर्जरी में बहुत बेहतर है. एलोपैथिक मेडिसिन अगर देखा जाए तो कई एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, मगर हमारे पास इंडिया के अंदर जितने आयुर्वेदिक के प्लांट्स हैं, जितना उस पर रिसर्च साबिका में हुआ है, वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं हुआ है. और हमारे कंट्री के अंदर जितना यूनानी के अंदर ट्रीटमेंट रिसर्च हुआ है और जितना ट्रीटमेंट हुआ है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए. प्रशांति मैडम यहाँ पर है, डायरेक्टर ऑफ आयुष है, वो कमिश्नर ऑफ आयुष है. मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट बनने के बाद जिस तरह हमारी स्टेट तरक्की की है, हमारे चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब है. क्योंकि उन्होंने 9 साल के अंदर हमारे स्टेट को पूरा चेंज कर दिया. हो हमारा डेवलपमेंट, जो इंसान जो सोचता है, जो कोशिश करता है, डेफिनेट उसमें उसे कामयाबी मिलती है. तेलंगाना बनने से पहले कई एक प्रॉब्लम थे हमारे पास. पावर तो टोटली बड़ा प्रॉब्लम था, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, फार्मर्स का प्रॉब्लम था. हर सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है. सीएम साहब ने 9 साल में उनका जो विजन था, और हेल्थ पे भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी. ज़्यादातर हम देखते हैं एलोपैथिक दवाखानों ने कई फाउंडेशन डाले हैं उन्होंने, मगर हम भी उनसे गुजारिश करेंगे. हमारे जो डायनेमिक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब भी बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. तो वो बहुत अच्छी तरीके से, साथ में फाइनेंस भी उन्हीं के पास है. ज़्यादातर अगर हम फाइनेंस यूनानी और आयुर्वेदिक पर खर्चा करें और होम्योपैथिक करेंगे तो मैं समझता हूँ कम पैसों में अच्छा इलाज हो सकता है. इसकी पब्लिसिटी होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ बुक्स भी देखा हूँ. मैं कमिश्नर मैडम से यही गुजारिश करूँगा कि मुझे अभी उनसे मैं कहा, मैं जब छोटा था, जब कभी बस में जाता था, कॉलेज जाता था या स्कूल जाता था या बाहर भी दिल्ली में जाता था, पहले किताबें मिलते थे बस के अंदर. वो बहुत कम पैसे में रहती थी, 8 आने 12 आने 4 आने वो टाइम के हिसाब से. तो उसमें ग़िज़ा और उसका इलाज रहता था. आज हम बड़े बड़े हकीमों पे टीवी पे देखते हैं, उन्होंने कहते हैं आपका इलाज तो मैक्सिमम आपका बावर्ची खाने में हो जाता है. जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, उसको सही तरीके से दवा के लिए इस्तेमाल करें. तो बहुत से बताते हैं, नुस्खे बताते हैं. मैं देखता हूँ जितना यूनानी और आयुर्वेदिक में परमानेंट फ़ायदा होता है. हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर से हमारे पुराने शहर के अंदर चांदमार के पास चांदमार यूनानी दवाखाना है, जहाँ पर पैरालिसिस का इलाज होता है. तो कई ऐसे इलाज है, किडनी के इलाज है, और ख़ास तौर से जैंडिस का है. मैं एक प्रैक्टिकल मेरा वाक़या सुनाना चाहता हूँ. मेरे फादर को जैंडिस हो गया था. यहाँ हैदराबाद के 2 बहुत बड़े डॉक्टर्स थे, उनका इलाज चल रहा था. खैर जैंडिस से अच्छे हो गए. अच्छे होने के बाद एक बार कहा कि आप एक्सरा लीजिए ज़रा, किडनी उडनी का पूरा बॉडी का चेकअप के लिए स्कैनिंग. उसके बाद जब उन्हें एक्सरा लेने पर पता चला कि चेस्ट में चर्बी बहुत ज़्यादा है, फिर वही डॉक्टर साहब को बताया गया, उन्होंने दवा लिख दी. तो दवा हम शुरू कर दिए. 3 दिन के बाद मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई. ख़राब क्या हुई, बहुत परेशान हो गए, और हम सबको बिठाकर कहने लगे कि मैं अब नहीं जीता, बहुत अंदर से तबीयत मेरी बहुत हौल हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है. तो पूरे हम ख़ानदान के अफराद जमा हो गए. जब काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि बहुत मजबूत इंसान थे,
तो उसके बाद मेरी वालदा ने अलमारी खोला तो वालिद साहब ने कहा कि वो अंदर एक यूनानी दवा है, ज़रा निकाल के लाओ। वो जवारी से जालिनोस थी। वो जैसा एक चमचा लिए 10 मिनट के अंदर वो बहाल हो गए। फिर अच्छे से अपने परेशानी ख़त्म हो गई, अपने काम काज में लग गए। अब जब डॉक्टर साहब के पास गए तो जो डॉक्टर है वो तो नहीं मानते, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। साहब ये दवा खाने से इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तो बोले ये चर्बी गलने की दवा दे दिए थे डॉक्टर साहब। जो चस्ट पे चर्बी जमा थी ज़्यादा, बस चर्बी गल रही थी, उनकी किडनी की चर्बी गल जा रही थी, क्योंकि वो बहुत नरम होती है, उसके ऊपर जो चर्बी आती है। यूनानी दवा जो इमीडिएट उनको रिलीफ थी वो जवारिश जालूस था। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि यूनानी में इतना रिसर्च हुआ है, आयुर्वेदिक में इतना रिसर्च हुआ है, उसे आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज ख़ास तौर से संस्था अकेडमी जो भी है उनके ऑर्गेनाइजर को, ख़ास तौर से मैं श्रीमती पानी श्री मैडम साहब बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उनकी टीम का मुबारकबाद देता हूँ कि हम कई ऐसे वाक़यात हमने देखा है। एक हमारे दोस्त का लड़का था, किसी वजह से वो शिकार के लिए चले गया, पुलिस गिरफ्तार कर ली, तो दवाखाना जेल रिमांड हो गए। रिमांड होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं दवाखाने में शरीक होना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। कुछ नहीं था हमारे, वो कहते थे कि मुझे तकलीफ, जिसमें बॉडी में तकलीफ है। अब दवाखाने वाले तो शरीक कर दिए। डॉक्टर को कह के साहब मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, तो पेन किलर दवा देते रहे। एक 8 दिन 15 दिन दवाखाने में रहे, उनका जब तक बेल मिलने तक। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम देखे तो उनके किडनी फेल हो गए। तो जब बताया, डॉक्टर को बताया गया तो बोले पेन किलर बहुत ज़्यादा खा लिए, उसकी वजह से किडनी फेल हो गए। तो ये एलोपैथी के दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। और बहुत एलोपैथिक दवा तो हम इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है, मगर हम जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़ाना चाहिए, आयुष को आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो हमारे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे, हरीश राव साहब से, जितना हम फंड एलोपैथिक पर खर्चा करते हैं, अगर उसका कुछ ज़्यादा हिस्सा इधर भी अगर हम डाइवर्ट करें तो मुझे बहुत यकीनन लोगों को परमानेंट फ़ायदा होगा। आप किडनी का इलाज देखिए, आप लोग बहुत करते हैं, पर यूनानी में जितना अच्छा इलाज किडनी का है, जैंडिस का इलाज है, कई ऐसे डिसीज़ है जिसमें आज तक भी एलोपैथी की दवा उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी यूनानी और आयुर्वेदिक की है। तो मुझे आज की सोचता अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टॉल्स लगाए गए, बहुत खुशी की बात है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, लोग नहीं समझेंगे दवा के बारे में। मगर जो लोग बचपन से बड़े लोगों से यूनानी खाते आते हैं वो ज़रूर आज भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आयुष मैडम, कमिश्नर मैडम का भी, मैं प्रशांति मैडम जो हमारी डिप्टी कलेक्टर थे मेरे टाइम पे जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, बहुत अच्छे रात दिन मेहनत करने वाली मैडम है। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी होना चाहिए। जब तक जो चीज़ की पब्लिसिटी नहीं होती वो चीज़ लोग इस्तेमाल करने से डरते हैं, क्योंकि पुराना जनरेशन यकीनन आज भी यूनानी आयुर्वेद पे बहुत बड़ा विश्वास रखता है, पर आजकल का नया जनरेशन को नहीं मालूम है। उसके लिए जितना हो सके हुकूमत की जानिब से, आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से अच्छी सी उसकी पब्लिसिटी होना चाहिए, ताकि लोग आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करें या यूनानी दवा इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक से भी काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, कम खर्चे में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, परमानेंट फ़ायदा होता है। हाँ, एलोपैथिक के अंदर डेफिनेट सर्जरी बहुत अच्छी है। सर्जरी में इमीडिएट जो भी बीमारी है उसका खात्मा किया जाता है सर्जरी से। हम फिर उससे भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मगर कई ऐसे डिसीजेज है जो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनते हैं, जो मसाले, जो जिस तरीके के उसके बनाने के जो आइटम्स होते हैं वो हमारे पास ही अवेलेबल है। तो हम इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। और आज का इसका संस्था ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों को, चेयरमैन साहब को, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ज़रूर हम भी आपके साथ हैं, और आज देखने के बाद बड़ी खुशी हुई। इसी तरह हम लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप करें, और इस प्रोग्राम से पहले भी इसकी पब्लिसिटी अच्छी की जाए तो काफ़ी शहर के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर आके देख सकते हैं, लोगों से मालूम कर सकते हैं। इन तमाम जो इस एग्जीबिशन से जुड़े हैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। थैंक यू। तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च युक्त्यां हनो वै सर्वा देवताः
सर्वाभिरेवैनं देवावतीर्वै देवतास्ताः सर्वावेदविधिब्राह्मणे वसन्ति रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति హెల్త్ కోసం ఉంది ఇండియాలో అంటే చాలా మెడిసిన్స్ ఉంది ఆయుర్వేదిక్ యునాని మెడిసిన్ అది ఇండియాలో అంటే చాలా ట్రీస్ ఉంది చాలా మసాలాస్ మెడిసిన్ తయారు చేసినాయి మా దగ్గర యూరోప్ కంట్రీస్లో లేదు యూరోప్ మెడిసిన్స్ అంటే హెల్త్ కోసం సర్జరీ మంచి మెడిసిన్ కోసం చాలా టైం సైడ్ ఎఫెక్ట్గా అవుతుంది ఆయుర్వేదిక్ అండ్ యునాని మెడిసిన్ కిడ్నీ కోసం చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది జైంటిస్ కోసం అవుతుంది పారాలిసిస్ కోసం అవుతుంది మా దగ్గర పెద్ద దవాఖాన చాలా దవాఖాన యునాని దవాఖాన ఈ ప్రొఫెషన్ ఈ మెడిసిన్స్ అంతా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాం అచ్చా ఇది 3 days ఎగ్జిబిషన్ పబ్లిసిటీ మంచి చేయాలి మేడం ఈ 3 days ఉంది ఇక్కడికి ఎగ్జిబిషన్ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు రాండి మీరు మీకు ఏ డిసీజ్ ఉంది డిసీజ్ తయారు దవా ఉంది ఇక్కడ యునాని దవాలో అంటే యునాని ఉంది ఆయుర్వేదిక్ ఉంది అలోపతిక్ ఉంది వచ్చే ఇక్కడ డాక్టర్స్ भी ఉన్నారు ఏ కావాలంటే తయారు దవా भी ఉంది ఇక్కడ మంచి యూజ్ అయితే బెటర్ ఉంది ఒకసారి విజిట్ చేస్తే మంచిది మీడియా మిత్రులు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తాను